کوئی دھرم ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں جیسے تمہارا دھرم تمہارا مذہب ہے۔ بتاؤں جی اللہ نے تمہارے اندر اپنے چنے ہوئے بندے بھیجے، مخصوص بندے جن کو ولی کہا جاتا، جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، مخصوص بندے ہیں۔ اس لیے اگر تمہاری نہ سنی جاتی ہو، اللہ والے کی بارگاہ میں چلا جا، اس کی سنی جاتی ہے۔ جا تو گناہگار ہے لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں پر جا کر کے آنسو نکال دے۔ یہی تو ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک بھی فیضان، اگر وہ دنیا سے چلا گیا اس کا مزار شریف بن گیا۔ اب مزار شریف پہ چلا جا، جہاں پر ڈاکٹری فیل ہے، جہاں پر حکمت فیل ہے، جہاں پر دنیا کی دوائیاں فیل ہے، اگر بیمار ہے کہیں سے علاج نہیں ہوتا، اللہ والے کی چوکٹ پہ چلا جا، وہاں سے خاک چاٹ لے، تجھے شفا مل جائے گی۔ وہاں پہ جا کر کے مانگ لے، تجھے شفا مل جائے گی۔ کتنوں کو بیٹے ملے، کتنوں کو بیٹیاں ملی، کتنوں کے کام بنے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہی قوم، یہی مسلمان قوم جب ایک سال میں اسی اللہ والے کا عرس پاک ہوتا ہے، اسی اللہ کے ولی کا جب عرس ہوتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا، ذرا یہ بھی توجہ رکھو۔ اس اللہ والے کے مزار پہ تم اگر جاتے، قرآن خوانی ہوتی، نعت خوانی ہوتی، تقریریں ہوتی، بیان ہوتا، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے، کسی پرہیزگار کو بلا کر کے دعائیں کراتے، پورا زمانہ، پورا علاقہ اکٹھا ہوتا۔ اگر کسی کے لیے اولاد نہیں ہے وہ اس کے لیے دعا مانگتے، مولا اولاد دے دے ان کے صدقے میں، مولا کام بنا دے اس کے صدقے میں، مولا ہماری بگڑی بنا دے ان کے صدقے میں۔ یہ ہوتا تو کتنے لوگ ایسے تھے ان کے گھروں میں بچے کھیلتے ہوتے، کتنے لوگ ایسے ہوتے جو جیلوں میں نہیں مسجدوں میں ہوتے، کتنے لوگ ایسے ہوتے جو حرام نہیں کھاتے حلال کماتے، کتنے لوگ ایسے ہوتے جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوتی۔ مگر اسی قوم نے، اسی مسلمان نے اللہ کے ولیوں پہ عرس کے نام پر غنڈہ گردی کرنا شروع کر دی ہے۔ عرس کے نام پر کسی اللہ والے کو نہیں، کہیں شیخ چلی کو بلا رہے ہیں، کہیں ڈانس پارٹی بلا رہے ہیں، کہیں سرکس والوں کو بلا رہے ہیں، کہیں جادوگروں کو بلا رہے ہیں۔ ارے تمہارا یہی شعار ہے، تمہارا یہی ہے، ذرا مجھے بتاؤ یہی اللہ والوں کے مزار پہ رو رو کر کے، آنسو نکال کر کے ہم دامن پھیلا کے مانگتے، مگر 50 لڑکیوں کی عزتیں لٹ جاتی ہے، نہ جانے کتنی عورتیں عرس پاک میں جا رہی ہیں، کتنے آدمی جا رہے ہیں، کتنوں کے دوپٹوں پہ دوپٹے اتر جاتے ہیں، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو موبائلوں پہ پہلے ہی سیٹنگ ہو جاتی ہے آ جانا عرس میں۔ اب مجھے بتاؤ اللہ والے کے یہاں پہ تم قرآن پڑھنے جاتے، تم دعائیں مانگنے جاتے، بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، بہنوں کے دوپٹے اترے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں میک اپ کر کر کے عرس کے نام پر غنڈہ گردی کی جا رہی ہے۔ ارے تمہارے کارنامے ایسے ہیں کہ تم پہ پتھر برسے تب بھی کم ہے۔ اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، سدھارنا ہے تو شیخ چلی یا کوئی اور ڈانس پارٹی یا کوئی اور سرکس کو نہیں لانا۔ اگر عرس کرانا ہے، کوئی عالم نہ ملے، تمہاری مسجد کا امام ہو، لوگ اکٹھے ہو جاؤ، قرآن خوانی ہو، اللہ والے کی بارگاہ میں آ جاؤ، دنیا دیکھ لے گی ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ والا فل پاور ہے، تمہارا بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین کچھا، نور مدینہ مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہندوستان میں اگر 100 عرس ہو رہے ہیں تو مشکل سے 10 عرس ایسے ہو رہے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے، 90 ایسے ہو رہے ہیں جو غنڈہ گردی کے بھیٹ چڑھ گئے، حق فرما رہے ہیں، غنڈہ گردی کے بھیٹ چڑھ گئے۔ ایک مصیبت ہو تو بتاؤں، ذرا سوچو غور کرو، پھر کہہ رہے ہیں یار بڑا پریشان کیا جا رہا، بڑا ٹارچر۔ قرآن میں آ گیا پہلے، قرآن میں آ گیا پہلے ہی۔ حد تو یہ ہے، اسٹیج کا نام دیں گے منبر رسول، ادھر لیڈیز بیٹھی ہوگی، ادھر جینٹس بیٹھا ہوگا، وہ اسے گندے گندے شعر، وہ اسے گندے گندے اشعار کہے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی رگوں میں
मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, शैतान दौड़ रहा, भूख लगा लगा के नोट बरसा रहे हैं ऐसे कर कर, और कह रहा है उर्स बड़ा भारी हुआ, बड़ा पत्थर बरसे तब भी कम है। हक फरमाए। जरा सोचो, एक चीज ये हो गई, अगर इसी को फैलाऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम 50 लोगों के निकाह हुए होंगे। निकाह मेरी सुन्नत, शादी करना नबी की सुन्नत। अब मुझे बताओ, शादी नबी की सुन्नत और सुन्नत पे अमल करना इबादत, बेशक। कौन सी इबादत है जो ढोल के साथ हो? कौन सी इबादत है जो बैंड बाजे के साथ हो? कौन सी इबादत है जो नाच गाने के साथ हो? कौन सी इबादत है जो आतिशबाजी के साथ हो? कौन सी इबादत है जो बेपर्दगी के साथ हो? नबी की शरीयत का खून कर रहे हो, हदीस का खून कर रहे हो, और कह रहे हो कि हम परेशान क्यों हैं? नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। अब निकाह में देख लो, 50,000 रुपया तुम शरीयत के खिलाफ उठाते हो। कहीं आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, कहीं बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, कहीं ढोल ताशे आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। अब तो और फैशन आ गया है, मैरिज हॉल करे जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के मैरिज हॉल पर, और रिश्तेदारों की लड़कियां खड़ी कर जाती है, फूल बरसा रही है, फूल। अरे शर्म करो मुसलमानों, शर्म करो। तुम अपने नबी की बेटी को नहीं देखते हो? नबी की बेटी ये कहती है सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, रुपये पैसे से ज्यादा नबी की बेटी कहती है औरत के लिए, बेटी के लिए, लड़की के लिए, मुअन्नस के लिए सोना, चांदी, रुपये, पैसे से ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, शर्म हया, गैरत होती है, उसके लिए पर्दा होता है। तभी तो पर्दे में आकर के मुसलमान की बेटी जब बच्चा जनती है तो कभी गौसे पाक पैदा करती है, कभी गरीब नवाज पैदा करती है, कभी साबिर पाक पैदा करती है, कभी वारिस पाक पैदा करती है, कभी मजलूम पाक पैदा करती है, कभी शाजी में हुजूर पैदा करती है। ये अल्लाह वाले पैदा करती है, और हमारी तुम्हारी बहन बेटियां आधी आधी नंगी हो गई है। ये क्या हुकूमत ने कह दिया था? ये क्या हुकूमत ने कहा? नहीं कहा हुकूमत ने ऐसा करो, ये मुसलमान कर रहे हैं। तुमने शादी अपनी बिगाड़ ली, तुमने बिगाड़ लिए। अब तुम्हारे पास बचा क्या है मुझे बताओ? खाली डंडे खाने के अलावा क्या बचा? हक फरमाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम है। वाह वाह वाह। ये दो चीजें हुई। वाह वाह। हजरत शादी पे अगर बोलूं तो घंटों हो जाएंगे, मगर इशारा देता हुआ चलूंगा। बता दो सलामी की बात। इशारा देता हुआ चलूंगा। बता। बाद में क्या चलती है कि साहब सलामी होगी, सलामी। कहाँ गए दूल्हा मियां और दूल्हा मियां के साथ 8-10 लफंगे दोस्त? कोई नमाजी गया? नहीं। कोई हाजी जी गए? चलो दूल्हा मियां के सर पे जितने लफंगे सब इकट्ठे हो जाएंगे, सालियां आएंगी, मुमेरी, फुपेरी, वो मिठाइयां, क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। उसका नाम रखा सलामी। काश तुम ऐसे बनते ना, जब जन्नत में जाते तो फरिश्ते और हूरे तुम्हें सलामी पेश करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मामला था। एक चीज नहीं है हजरत, इतने नबी फरमाते निकाह मेरी एक भी चीज ऐसी बता दो जो सुन्नत के मुताबिक हो सिवाय निकाह के। बहुत एक भी चीज बता दो। और फिर कह रहे हैं कि यार हमें टॉर्चर किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, ये तुम्हारे कारनामे। और एक चीज सुनो, कहीं अगर मदरसे की दीवार ढा दी जाती है हजरत, तो लोग कहते हैं अरे 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 अरे। मस्जिद की ढा दी जाती तो अरे अरे अरे, सब करते रहते हैं। मुझे बताओ, मदरसा ढाने वाला बड़ा मुजरिम है या दीन को ढाने वाला बड़ा मुजरिम है? दीन को ढाने वाला। दीन को ढाने वाला। बाद में बातें करना, तुम में से 50 लोग ऐसे जो दीन को ढा रहे हैं। दीन को। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। अपने आप को वाह 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 वाह। मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं है, तुमसे मतलब है। बहुत अच्छा। तकरीर तुम में करूंगा, अगर तुम में ना करूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? सुनना पड़ेगी। 50 लोग ऐसे जिनके घरों में दीन को ढाया जा रहा। बता दूं कौन कौन है? इरशाद इरशाद। किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, मुफ्ती साहब की नहीं बताऊंगा, कहीं हो सकता है झगड़े में डाल के कह दो हम उनको नहीं मानते।
बड़ा आसान तरीका निकाल लिया तुमने बचने का। हम उनको नहीं मानते, लेकिन नबी ने फरमाया। कोई है माइकल लाल जो ये कह दे कि नबी को नहीं मानता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ सुनो, तवज्जो रखो, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। यहाँ मिंबर शरीफ पर असातिज़ा बैठे हुए हैं, मिंबर शरीफ पर मुदर्रिसीन जलवागर हैं, जानते हैं, लेकिन सुनो, आका फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन का खंबा है। ये जो रुका पड़ा है ये खंबा है, इसका ये सतून है, इस सतून से ये रुका हुआ है। ऐसे ही दीन जिससे रुका हुआ है उसका खंबा जो है वो नमाज है, उसका सतून जो है वो नमाज है, उसका पिल्लर जो है वो नमाज है। नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज अदा की उसने दीन को बरकरार रखा। आका फरमाते हैं, वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन को तर्क कर दिया, उसने दीन को ढा दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियां भी हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे भी हैं, किसी के घर में 2 बेटी, किसी के घर में 3 बेटी, किसी के घर में 2-3 बेटे हैं। मुझे बताओ, क्या फजर में तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। ज़ोहर में नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। असर मगरिब इशा में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो। अरे क्या हुकूमत ने रोका है कि तुम नमाज मत पढ़ियो? हुकूमत ने रोका है कि तुम्हारी बेटी नमाज ना पढ़े? क्या हुकूमत ने रोका है तुम्हारे बेटे नमाज ना पढ़े? किसने रोका है? जो तुम कहते हो किसी ने नहीं रोका। अब फतवा मौलाना का नहीं है, नबी की हदीस है। नबी फरमाते हैं, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। अरे शीशे में मुंह देख, फजर में तेरी बेटी दीन को ढा रही है, ज़ोहर में तेरी बेटी दीन को ढा रही है, मगरिब में तेरी बेटी दीन को ढा रही है, ईशा में तेरी बेटी दीन को ढा रही है। अरे हमारे घरों में फजर में दीन को ढाया जा रहा, ज़ोहर में दीन को ढाया जा रहा, असर मगरिब इशा में दीन को ढाया जा रहा। मुझे बताओ, 5 वक्त कोई दीवार नहीं बल्कि दीन को ढा रहे हो। तुम्हारे घरों में दीन को ढाया जा रहा है। अगर तुम्हें दर्द है, नबी की हदीस से मोहब्बत है, तो आज फैजान भाई ने ये जो जलसा कराया, अहद लेके जाना, इंशाअल्लाह हम हुकूमत से लड़ नहीं सकते मगर दीन को बचाएंगे। नमाजें पढ़ पढ़ के दीन को बचाएंगे, नमाजें छोड़ोगे तो दीन ढाओगे। लोगों, मदरसे बाद में देखो, पहले अपने दीन को संभालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नूर मदीना मस्जिद, सरजमीन किशा। वाह, मुझे मालूम है तुम्हें ये बात